for blessing me with this splendid opportunity to stand before you, wonderful people of this wonderful city, mashallah. And I also thank HIF organization, which has 10 years of experience, mashallah. I have spoken to almost all the members of this great organization. I visited Mangalore a couple of times. Last year, I had a chance to visit this beautiful city. And I interacted and I got to know the activities being rendered by HIF India. And I was very much inspired. And I'm inspired, and I have two reasons for that. The reason one, it's a wonderful job they are doing. And the reason two, I have seen all the youngsters, mashallah, gathered. It's very seldom I get to see the youngsters getting involved in such wonderful activity, and they are doing wonderfully well, mashallah. And I beseech Allah subhanahu wa ta'ala to bless this organization with a lot of success today and in the coming days, inshallah. A big round of applause for the wonderful activities being imparted, rather being rendered by this great NGO, and which has lots of objectives, inshallah. In the coming days, you will get to know a lot about the objectives and the aims and objectives of HIF India, inshallah. And today is the very special day because I have got opportunity to deliver lectures not only in India but also in Saudi Arabia, in Qatar, in many African countries, and about 15 cities in the United Kingdom as well. But today is the very special day because I'm delivering this talk in presence of not only the wonderful youngsters, their parents. Today we have a great personality of Mangalore, and he is none other than the Honorable Speaker of the Karnataka Legislative Assembly, that is Mr. Yuti Khadar. The son of the Mangalore has, mashallah, created a history. It's not easy to reach the chair which he has occupied, mashallah. I wish a very, very best of luck for him. And I would ask you all wonderful people, you have wonderful opportunity today to give him a standing ovation with warm round of applause, mashallah. The son of this great city has done a miracle, has done a history, has made a history, mashallah, by becoming the Honorable Speaker of the Karnataka Legislative Assembly. He is a big inspiration for all the youngsters here, mashallah. And he has achieved with his simplicity. Thank you so very much. Please be seated. I will inshallah deliver a talk, and I have wonderful messages for you. But let me bring it to your kind notice. Many people dream to do wonders in their lives, to reach the pinnacle of success in their lives. But hardly a few people succeed in achieving their dreams and goals. But today's chief guest, Honorable Speaker, mashallah, he has fulfilled his dream and he has reached the pinnacle of success, mashallah, the apex of success, the culmination of success. And many of you already know, but I take this opportunity to emphasize that he is a very humble and very simple man. I have traveled across the nation. I have trained over 3 lakh individuals, and I've been to many places. I have met many politicians. Among many politicians, with firm assurance I can say, he is one of the very humble politicians of this great nation. And he has that qualities. If I have that qualities, if you have that qualities, the qualities our speaker has, then I have firm confidence we will also inshallah do wonders in our life. Well, I come to the motivational talk today.
and I am so thankful to HIF India for giving me this great opportunity to interact with the youngsters. I can see many school-going children and many girls and their parents. Well, I begin my talk today with a very simple question, and my question goes to all the school students and college students, the boys and girls. And I really appreciate if you answer my question. But before I put this question, I would like to know how many of you are school and college-going students. I appreciate if you stand for a while so that I get to know the numbers. Would you please stand for a while so that I get to know that how many of you are students, how many of you are going to school, how many of you are going to colleges, how many of you are going to universities, mashallah. I can see lot many students, mashallah. And I have a very simple question to the future leaders of this nation, mashallah. Are you ready to answer my question? Over 1,500 students are present in this hall, and I have heard yes from only a few students. So I put this question again. Are you ready to answer my question? You know why we fail to achieve big things? We do not attempt to answer. This is one of the very big reasons why we do not achieve big things in our life, because we are afraid of failure. What if I make a mistake? People may laugh at me. Believe me, by making mistakes, you get perfection, inshallah. You get to learn many things. So do not ever be afraid. You're not doing a sin. You're just making a mistake in your life. So never be afraid of making mistakes. I'm so very happy that your voice echoed, and I again want to feel that echo in this hall. Are you all ready to answer my simple question? That's wonderful, mashallah. But I have a couple of conditions. And before I put that condition, let me bring it to your kind notice that in the year 2010, I put this question to the IAS topper, Dr. Shah Faisal from Kashmir. He topped UPSC exam. Over 10 lakh students appeared for that very tough exam, and he cracked it. He just didn't crack, but he topped that. He was the topper of 2010. I put this question, very simple, very easy question, and I'm going to put that question tonight to the youngsters of this wonderful city, mashallah, and you all are excited and you are ready to answer. But I'm going to put certain conditions, and I put the condition to Dr. Shah Faisal as well. The condition number one, pay heed to me, please. Listen to me very attentively. The condition number one is you are supposed to answer my question with no second thought. What it means with no second thought. You be seated, please. Be seated. You are supposed to answer my question with no second thought. What actually does it mean? It means that you should give an instant reply. For example, if I ask you your name, do you seek options to give your name, or you answer instantly? Answer me, please. Would you say that, give me a second, I'll have a talk with my mom and get back to you, sir? Do you say that? If I ask you the name of your school, you say it very instantly. In such pace, you're supposed to answer my question. If you take even half a second, though you answer it correctly, I regard it incorrect. Though you give me the right answer, but if you take even half a second, I regard it incorrect, because you have already been given a condition to answer my question
with no second thought. And the second condition, you're not supposed to ask me to repeat the question because you get time and you think and you answer. So you have no such opportunity to say, sorry sir, I didn't hear you. Would you repeat? I appreciate. You're not supposed to say this. Are you ready now? How many conditions have been put now? Answer me please. What is the first condition? With no second thought. And what is the second condition? Yes, please. You should not ask me to repeat the question. Are you ready now? Yes. Stand for a while, please, so that you get that warmth and energy and enthusiasm. Let me see who is that genius who would answer this very simple question, which was put to IAS topper in 2010. I'm not going to repeat this question, and the question goes now. Still, many students or parents, they are talking, they are disturbing, in fact. Wonderful. Pin drop silence. Very good. And the question goes now. Say it very loudly. How many alphabets does English language have? Same was the answer given by Dr. Shah Faisal, but the students sitting in the auditorium, India Islamic Cultural Center, they already knew because they were taught. They said wrong answer, and Dr. Shah Faisal was surprised and he was looking at me. 26. मैंने तो सही कहा ना sir? I said no, it was a wrong answer. 26 are not the alphabets. 26 are the letters. English language has only one alphabet. My question was, how many alphabets does English language have? अंग्रेजी जुबान में कितने alphabets हैं? Answer क्या होना चाहिए? एक ही alphabet. You have grandfather, grandmother, father, mother, brother and sister. Together, it is a family or families? Answer me please. Together it is a family means singular. The group of letters from A to Z is called an alphabet. Do you get it? तो आज आपको क्या मैसेज मिला है? There are many school toppers. यहाँ बहुत school toppers भी हो सकते हैं, college toppers भी हो सकते हैं. You may have passed with distinction and scored 100 out of 100 even in English, in maths and many subjects. But today from this auditorium, what is your take home? क्या मैसेज लेकर आप घर जा रहे हो? कि learning never ends. Learning never ends. If you are with a teacher, you learn many things, mashallah. Not with just Munawwar Zama. With any teacher, if you spend time with good people, if you spend time with teachers, if you spend time with scholars, you learn lot many things, mashallah. But you spend time with friends, and you spend time on Instagram, you spend time on social media, then you are going to get nothing in your life. You remain failure in your life. So I want you to spend time with good teachers, experienced teachers, energetic teachers, efficient teachers, knowledgeable teachers. Then inshallah you are going to become an inspirational personality and a wonderful human being and a knowledgeable person as well, mashallah. Thank you very much. Be seated. तो आपका पहला जो टेक होम यहां से आप लेकर जा रहे हो, वो क्या लेकर जा रहे हो? कि लर्निंग नेवर एंड्स. यहां जितने लोग बैठे हैं उनके नॉलेज में भी इजाफा हुआ है. दे हैव इंक्रीज द नॉलेज. दैट 26 अल्फाबेट्स नहीं है, 26 लेटर्स हैं. बट माय टीचर, he taught me that English language has two alphabets. One is letter alphabet, second is phonetic alphabet. Letter alphabet has 26 letters because A is a letter, B is a letter, C is a letter. This way, letter alphabet has 26 letters and phonetic alphabet has 44 sounds. How many sounds?
44 sounds. Among 44 sounds, there are 20 vowel sounds and 24 consonant sounds. A, E, I, O, U, ये vowel letters हैं, vowel sounds नहीं है. A, E, I, O, U सब जानते हैं ना, ये vowel letters हैं, ये vowel sounds नहीं है. Otherwise, there are 20 vowel sounds in English language and 24 consonant sounds. अब consonant sounds हमें क्यों सीखना चाहिए? For example, CAP, cap, and CAB, cab. And if you make them plural, CAPS, the S is pronounced as S, caps. And if you add S to CAB, cab, it becomes cabs. Z sound comes. Why? School going and college going children today have no knowledge of pronunciation today. Cap is ending in P sound. P is unvoiced consonant. Cab is ending in B sound. B is voiced consonant. Unvoiced consonants के बाद अगर S आता है तो सा ही पढ़ेंगे. Voiced consonant के बाद S आता है तो जा पढ़ा जाता है. But anyhow, बहुत छोटे छोटे स्कूल के स्टूडेंट्स थे, so that they develop interest in pronunciation, in public speaking. So I put this small question. I gave a very short description or demonstration on phonetics. And now I have another question. I put this question, then I inshallah deliver a wonderful talk before you, students and parents inshallah. मेरे पास और एक बहुत ज़बरदस्त question है. इस hall में I can see about 1,500 and more than 1,500 students. Is here anybody who wishes to become an IAS officer? Anybody? One person, only one? And girls, anybody? Stand up, please. Think big, dream big, achieve big. Raise your hands, please. Anybody to become IAS officer? Yes. You may not have the dream today, but in future, inshallah, you develop the dream to crack the toughest exam in India, that is UPSC. Once the interview was being held and the aspirants were being interviewed, एक सवाल पूछा गया. IAS officers जो बनते हैं उनको बहुत tough questions पूछे जाते हैं, और वो questions बड़े interesting भी होते हैं, बड़े tough भी होते हैं, और बड़े logical भी होते हैं. तो मैं एक question आप सबसे करूंगा आज, फिर इंशाल्लाह जिसके लिए आप सब लोग जमा हुए, motivational talk, उस पर मैं आऊंगा इंशाल्लाह. आप लोग आंसर देने की कोशिश करें, आवाज में देने की कोशिश करें, या डर लगता है आपको कि गलती कहीं हो जाए तो लोग हंसेंगे? तो दिल ही दिल में आंसर जरूर देना सबने. जितने लोग बैठे हैं सब IAS एस्पिरेंट समझ लें थोड़ी देर के लिए. क्या इमेजिन कर सकते हैं आप लोग? ये दुनिया, इसमें जो चीजें बनी है ना, ये इमेजिनेशन से ही बनी है. इमेजिन करना, 2000 साल पहले जो हाथी हुआ करते थे, उनका जो लाइफस्टाइल था, आज भी उनका लाइफस्टाइल वैसा ही है. उनका कोई आधार कार्ड नहीं है, उनका कोई पासपोर्ट नहीं है, उनका कोई ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है. Have you ever seen elephants going to school and learning the letters, learning mathematics, learning social studies, anything? No, animals never go to school. The way they were living 1,000 years ago, 2,000 years ago, they have the same lifestyle even today in 2023. But in the last 100 years, in the last 10 years, we human beings have done wonders, mashallah. क्यों wonders हम लोग कर पाए और animals नहीं कर पाए? क्योंकि इंसान को अल्लाह ने सोचने की सलाहियत दी है. जो सोचता है, जो इमेजिन करता है, वही वंडर्स करता है.
वरना फिर लेबर्स भी काम कर रहे हैं, साइंटिस्ट भी काम कर रहे हैं. What is the difference between the laborers and the engineers, the laborers and the doctors, the laborers and the leaders? क्या फर्क होता है लोगों में, साइंटिस्ट और लेबर में? साइंटिस्ट अल्लाह ने जो तोहफा दिया है ना, दिमाग, ब्रेन, उसका पूरा इस्तेमाल करते हैं. Whereas many individuals today, we do not use this brain. This is the priceless gift from Allah subhanahu wa ta'ala. ऐसा बेहतरीन तोहफा अल्लाह ने आपको दिया है और हमने आज तक उसके प्राइस को समझ ही नहीं पाए कि अल्लाह ने हमको क्या चीज से नवाजा है. आप कोई दीवाने बंदे को रास्ते पे, रोड पर कभी देखें और आप कंपेयर कर लें कि मैं कैसा हूं और वो कैसा है. वो दिमाग इस्तेमाल नहीं करता है तो वो पागल है, वो दीवाना है. आप दिमाग इस्तेमाल करते हैं तो आप होशियार हैं, आप बाअखलाक है. तो याद रखें, अल्लाह का जो तोहफा है, और बहुत से अल्लाह ने तोहफे दिए हैं, आंख दिए हैं, नाक दिए हैं, पैर दिए हैं, हाथ दिए हैं, लेकिन ये सारी चीजें जानवर में भी तो हैं. इवन एनिमल्स, they have eyes, they have legs, they have hands, they have everything what you and I have. But what makes human beings special and extraordinary? आपके पास जो है वो सारी चीजें एनिमल्स में हैं. मेरे और आपके पास में 2 पैर हैं, एनिमल्स के पास में है. चलो रेस लगाते हैं, जीत किसकी होगी? Who will outrun? Of course एनिमल्स जीतेंगे. हम पानी में तैर तो सकते हैं, लेकिन क्या हम मछलियों से ज्यादा तेज तैर सकते हैं? नो, वी कैन नॉट. हम क्या आसमानों में, हवाओं में उड़ सकते हैं? नो, वी कैंट. क्या हम लोग एनिमल से फाइट कर सकते हैं? नो, वी कैंट. बट स्टिल वी आर अशरफ. वी आर अशरफुल मखलूकात. स्टिल वी आर ब्लेस्ड इंडिविजुअल्स. व्हाई? बिकॉज अल्लाह हैज ब्लेस्ड ऑल ऑफ अस विथ ए वंडरफुल गिफ्ट, दैट इज ब्रेन, माइंड. अल्लाह ने जो दिया है वो आज के नौजवान बच्चे बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करते हैं. इसको इस्तेमाल करना छोड़ दिए हैं. तो मैं आप सबसे कह रहा था, एक टॉपिक पर मैं बात कर रहा था कि आईएएस ऑफिसर्स, आईएएस एस्पिरेंट्स को क्वेश्चन पूछा जा रहा था. तो जितने लोगों ने इमेजिन किया, किसी इंसान ने परिंदों को उड़ते हुए देखा और देख देख कर बस खाली देखते रहे, लेकिन राइट ब्रदर्स ने कुछ खास नजर डाली तो आपने एक तोहफा दिया, गिफ्ट. वो क्या गिफ्ट इंसानों को मिला है बताएं? एरोप्लेन मिला है. हज पर जाना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल था. समंदर में जाते, कश्तियों में. कश्ती इजाद होने से पहले लोग पैदल जाते. आप लोग यंगस्टर्स, यू मे नॉट बी हैविंग दिस नॉलेज, आप लोग के इल्म में नहीं होगा. आज से 30 साल पहले जो भी हज पर जाते ना तो पूरा खानदान रो पड़ता था. घर में एक मातम सा हो जाता था, क्योंकि वापस आने की कोई गारंटी नहीं होती थी. लोग पैदल जाया करते थे हज पर, 6-6 महीने लगते थे, रो रो कर जाया करते थे. आज हज को हंस हंस कर जा रहे हैं. क्यों? 3 घंटे में आप जिद्दा पहुंच जाओगे. यूटी खादर साहब कल सुबह में यहीं पर थे, मैंगलोर में. शाम में सऊदी अरेबिया में थे, आज सुबह फिर मैंगलोर में है. तो ये जिसने भी एयरप्लेन बनाया है उसने गिफ्ट पूरे इंसानियत को दे दिया है. क्या मैं, मेरे अब्बू, मेरे दादा, मेरे नाना, क्या हमने कोई ऐसा गिफ्ट इंसानियत को दिया है या कभी हम देंगे इंशाअल्लाह? क्या हमारे पास ये सोच है, ये इमेजिनेशन है कि मैं कुछ ऐसा करूंगा जिसका फायदा पूरे इंसानियत को मिलेगा इंशाअल्लाह? ये पर्पस होना चाहिए लाइफ में. पहले की औरतें कपड़े धोया करती थी खूब. एक घर में 8-8, 10-10, 12-12 बच्चे हुआ करते थे पहले. खूब कपड़े धोया करती थी माँ. कोई घर में मेड्स नहीं हुआ करते थे. वुमेन इन द पास्ट, दे वर वेरी हार्ड वर्किंग, very dedicated and very committed. They did not have maids at home. They did all the job at home.
तो 12-12 लोगों के कपड़े एक औरत अपने हाथ से धो धोकर, इमेजिन करें कि वो माओ को हाथ में कितना पेन हुआ होता था। लेकिन किसी एक बंदे ने वॉशिंग मशीन बनाया, तो क्या वो वॉशिंग मशीन ने उसने अपने माँ को गिफ्ट दिया या पूरे माओ को गिफ्ट दिया? उसने सिर्फ देश के नहीं, दुनिया के तमाम माओ को उसने गिफ्ट दिया। आज हमारे यंगस्टर्स अपनी खुद की माँ को गिफ्ट नहीं दे पा रहे, और देने वालों ने गिफ्ट दुनिया के पूरी माओ को दिया है। चूल्हों में बैठकर, अभी मेरा एक मदरसा जाना हुआ था, एक मुफ्ती साहब के भाई का एक्सीडेंट में डेथ हुआ था, कर्नाटका के बीदर के रिमोट एरियाज में। मैं गया, बूढ़ी माँ से मैं मिला वहाँ, उनके वालिद साहब से। तो मुफ्ती साहब बता रहे थे कि मेरी अम्मी ने 25 साल इस मदरसे में पूरे तलबा को रोटियां अपने हाथों से बनाकर खिलाई हैं, और लकड़ी के चूल्हों के ऊपर बनाकर हाथों से। वो धुआं जो होता है ना आंख में, जाकर मेरी अम्मी की आंख डैमेज हो गई है। अब मेरी अम्मी देख नहीं सकती है। मदरसे के बच्चों को रोटियां खिला खिलाकर चूल्हे पर, उसकी जो आग होती है, धुआं होता है ना, आंखों में जाकर शी इज ऑलमोस्ट ब्लाइंड। लेकिन किसी ने गैस स्टव इन्वेंट किया है। तो जिसने भी गैस स्टव इन्वेंट किया है, क्या वो गैस स्टव उसने अपनी माँ को गिफ्ट दिया या पूरी दुनिया की माओ को गिफ्ट दिया? उसने आंसर मी, पूरी दुनिया के माओ को गिफ्ट दिया है। तो कुछ ऐसा कर दिखाना आपने जिंदगी में जो फायदा सिर्फ आपको, आपके घर वालों को ना हो, फायदा दुनिया वालों को हो। इसका नाम है जिंदगी, इसका नाम है कामयाबी। कामयाबी, प्यारे बच्चों, 10th में 90% ले आने से कामयाबी नहीं कहते हैं। आप आईएएस ऑफिसर बन जाए, मुनव्वर जमा के नजर में कामयाबी नहीं है वो सिंपल एक अचीवमेंट है। आप कैसे अपनी जॉब करते हो, कितना इंसाफ करते हो, कैसा बिहेव करते हो गरीबों से, अमीरों से, सबके साथ में। आपका जब टेन्योर हो जाएगा, आपका जॉब हो जाएगा, सब लोगों को पता चल जाएगा कि आप कामयाब आईएएस ऑफिसर थे या नहीं थे। तो ये जो एग्जाम में आप 99, 100 मार्क्स ले आते हो और नीट एग्जाम क्रैक करते हो, JEE क्रैक करते हो, आईएएस क्रैक करते हो, इट इज जस्ट एन अचीवमेंट, नो सक्सेस, इट्स नॉट सक्सेस। कामयाबी इसको नहीं कहते हैं। कामयाबी किसको कहते हैं? आप काम कर रहे हो, फायदा दूसरों को पहुंच रहा है, फायदा सिर्फ आपको नहीं। अगर आपको फायदा पहुंच रहा है तो यू आर अ सेल्फिश इंडिविजुअल। आप वो काम करें, वो मुकाम पर पहुंचे जिससे अवाम को फायदा पहुंचे। ये आज का दूसरा मैसेज आप अपने घर ले जा रहे हो। अपना जो भी करियर बना रहे हो आप लाइफ में, फायदा किसको पहुंचना चाहिए? आंसर मी प्लीज। अवाम को, इंसानियत को, इंसानों को फायदा पहुंचना चाहिए। जब आप ऐसा काम कर रहे हो जिससे फायदा इंसानियत को पहुंच रहा है, जाहिर सी बात है उसके फ्रूट्स आप भी तो खाओगे। ये थॉट्स आपने डेवलप करना है इंशाअल्लाह। इफ यू थिंक बिग, बड़ा सोचेंगे आप, तो अल्लाह के फैसले भी बहुत बड़े आएंगे। नीयतों पर डिपेंड करता है। आप इस जमीन पर नीयत करते हो तो आसमानों में अल्लाह प्रोग्रामिंग करता है कि ये बंदा बहुत बड़ी सोच रखने वाला है, लिहाजा मुझे इसको कामयाबियों से नवाजना है, अपॉर्चुनिटीज से नवाजना है। तो ये सोच बड़ी रखना है। बहरहाल मैं आप सबसे, आई रिक्वेस्ट यू ऑल वंडरफुल इंडिविजुअल्स, फॉर ए वाइल, थोड़ी देर के लिए सब लोग आईएएस एस्पिरेंट्स बन जाएं। एस्पिरेंट यानी जो ख्वाहिश रखता है आईएएस ऑफिसर बनने की। क्या थोड़ी देर के लिए क्या आप सब लोग बनेंगे? आंसर मी प्लीज। जो फ्रंट रोज में बैठे हैं, क्या मैं आपसे एक्सपेक्ट कर सकता हूं कि कुछ देर के लिए स्पीकर साहब आप आईएएस एस्पिरेंट बन सकते हैं? माशाल्लाह, देखिए वो भी यस कह रहे हैं। तो यहां इस हॉल में कौन बैठे हैं? आईएएस एस्पिरेंट्स बैठे हैं। तो एक सवाल पूछा गया था, एक बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन।
कि अंधेरी रात थी, घना जंगल था और तूफान छाया हुआ था, खूब बारिश हो रही थी और आप कमरे में, जंगल में एक छोटा सा घर है और वो घर में आप तन्हा अकेले बैठे हैं। सिचुएशन क्या है? अंधेरी रात है, घना जंगल है और मौसलेदार बारिश, यानी इट्स रेनिंग वेरी वेरी हेवीली, और आप एक छोटे से घर में बैठे हुए हैं और रात का वक्त है, जानवरों का डर है दिल में। अचानक दरवाजा खुलता है, एक बहुत ही खूबसूरत लड़की आपके कमरे में दाखिल होती है, ऑल नेकेड, विदाउट क्लोथ्स। तो आप क्या करोगे? यह क्वेश्चन पूछा गया था आईएएस ऑफिसर से। तन्हा है आप, कोई नहीं है, रात है, अंधेरी रात है, तूफानी रात है, आप अकेले हैं और एक बहुत ही खूबसूरत लड़की विथ नो क्लोथ्स, ऑल नेकेड, शी एंटर्स द रूम। व्हाट वुड यू डू? तो एक एस्पिरेंट ने कहा, उससे पहले आप भी जवाब दे लीजिए, देखे मैच होता है कि नहीं होता है। एक एस्पिरेंट ने कहा कि सर मैं उसको वापस भेज दूंगा, आई डू नॉट लेट हर कम इन। दूसरे एस्पिरेंट ने कहा कि मैं अपना चेहरा फेर लूंगा, ऐसा देखूं, उसकी तरफ नहीं देखूंगा, मैं गुनाह नहीं करूंगा। तीसरा एस्पिरेंट ने कहा कि मेरी जैकेट उतार कर उसको पहना दूंगा। तो सबने क्लैपिंग की है, आप लोग भी कीजिए। लेकिन तीनों को रिजेक्ट कर दिया गया, तीनों को रिजेक्ट कर दिया गया। चौथा एस्पिरेंट बैठा था, उसने कहा मैं उस लड़की को किस करूंगा, मैं उस लड़की को किस करूंगा। तो इंटरव्यूअर ने पूछा कि भाई क्यों? तो उस बंदे ने कहा, आई अज्यूम दैट गर्ल, अ 4-year ब्यूटीफुल गर्ल, एक 4 साल की छोटी लड़की है, मैं गया उसको गले लगाया, उसको किस किया, और ये जो मुंह फेरने वाला था, जो जैकेट देने वाला था, जो बाहर कर दिया, उनकी नीयत में खोट थी। वो एक जवान बच्ची को अज्यूम कर रहे थे। खूबसूरत लड़की कमरे में अकेले दाखिल हो रही है, तो आपकी जो नीयत है वो सोच कहाँ जा रही है आपकी? 17 years, 19 years, 21 years। तो यहाँ नीयतों पर फैसले होते हैं। इसमें आपके माइंड को पढ़ा जाता है, ऐसे क्वेश्चंस पूछते हैं, आपके कैरेक्टर को पहचान लेते हैं, आपके पर्सनैलिटी को पहचान लेते हैं, ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। एक ब्रिटिशर ने स्वामी विवेकानंद जी से कहा कि व्हाई डोंट यू वेयर गुड क्लोथ्स, व्हाई डोंट यू वेयर गुड क्लोथ्स एंड लुक लाइक ए जेंटलमैन। तो स्वामी विवेकानंद जी ने बड़ा खूबसूरत आंसर दिया, इन योर कल्चर अ टेलर मेक्स वन जेंटलमैन, बट हियर इन इंडिया, इन आवर कल्चर, आवर कैरेक्टर मेक्स अस जेंटलमैन। हमारे देश में हमारे किरदार, हमारा कैरेक्टर बनाता है हमें जेंटलमैन, और आपके देश में एक ब्लेजर अगर कोई पहन लिया तो उसको जेंटलमैन कहते हैं। कैरेक्टर बहुत बड़ी चीज होती है। तो आपने अपनी सोच को अच्छी बनाना है, सोच को पॉजिटिव बनाना है। चारों थे वहां पर, चारों डिफरेंट आंसर दिए। एक ने कहा मैं उसको दफा कर दूंगा, बाहर कर दूंगा। दूसरे ने कहा मैं चेहरा देखूंगा भी नहीं, गुनाह है। तीसरे ने कहा मैं जैकेट दूंगा, और चौथे ने कहा मैं लपेट लूंगा उसको जाकर। क्यों? वो अज्यूम क्या कर रहा है? एक छोटी सी लड़की है, नेकेड विथ नो क्लोथ्स, तो वहीं पर पूरी दुनिया आउट हो जाती है। तो सोच को पाक रखना है, सोच को पॉजिटिव रखना है। तो ये जो थर्ड मैसेज मैंगलोर के यंगस्टर्स आज घर ले जा रहे हैं। अपने पेरेंट्स अगर पूछेंगे आपसे कि आज का लेक्चर से आपने क्या सीखा, कुछ बताएं, तो आपने कहना है कि लर्निंग नेवर एंड्स, हमेशा सीखते रहना है। यू आर द टॉपर ऑफ द स्कूल, यू आर टॉपर ऑफ द टाउन, यू आर टॉपर ऑफ द सिटी, यू आर टॉपर ऑफ द स्टेट, यू आर टॉपर ऑफ द नेशन, बट नेवर स्टॉप लर्निंग। लर्निंग कभी नहीं छोड़ना है आपने, यह पहला मैसेज। दूसरा मैसेज आपने क्या कहना है अपने पेरेंट्स को कि काम जिंदगी में ऐसा करो जिसका फायदा सिर्फ आपको नहीं
बल्कि अवाम को, इंसानों को, इंसानियत को मिले फायदा। और तीसरा टेक होम आपको क्या मिल रहा है? आंसर मी। अपनी नीयत, अपनी सोच को पाक बनाओ, पॉजिटिव रखो माशाअल्लाह। तो ये 3 चीजें आप लोग अपने घर ले जाइए, इंशाअल्लाह बहुत कामयाबी मिल सकती है आपको। अभी मैं बड़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक के तरफ आ रहा हूं, बिकॉज आई कैन सी मेनी स्कूल गोइंग चिल्ड्रन हियर, मेनी कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स हियर। आप मुझे कुछ क्वेश्चंस के आंसर्स क्विकली, जल्दी जल्दी देते जाइएगा, फिर मैं टॉपिक की तरफ भी जल्दी जल्दी बढ़ूंगा इंशाअल्लाह। पहला क्वेश्चन, एक बैट्समैन गलती करता है तो आउटपुट क्या होता है उसका? आंसर मी प्लीज। एक बैट्समैन गलती करता है तो उसका आउटकम क्या होता है? कैन एनीबॉडी आंसर? सिंपल। अब यहां से टफ क्वेश्चंस, लॉजिकल क्वेश्चंस नहीं पूछ रहा हूं मैं, ये कॉमन क्वेश्चंस है। इफ ए बैट्समैन मेक्स अ मिस्टेक, व्हाट वुड बी द आउटकम? ही गेट्स आउट, सिंपल। वो आउट हो जाता है, यस और नो? एक डॉक्टर मिस्टेक करता है तो एक की जान चले जाती है। डॉक्टर साहब भी बैठे हुए यहां पर, ऑन्कोलॉजिस्ट है, आए हुए हैं। एक डॉक्टर मिस्टेक करता है तो आउटपुट क्या है? वर्स्ट आउटपुट क्या है कि एक पेशेंट की डेथ हो जाती है। आप बाइक पर जा रहे हो या कार आप चला रहे हो, आप मिस्टेक करते हो, वर्स्ट आउटपुट क्या होगा? आपकी जान जा सकती है, यस और नो? तो एक्सीडेंट, यू मीट विथ एन एक्सीडेंट एंड यू मे पॉसिबली डाई बिकॉज यू हैव मेड अ मिस्टेक। अब क्लासरूम में, इंडिया इज अ वेरी बिग नेशन, crores and crores of students, they get up early in the morning and they go to school, colleges and universities every day. Countless number of students, they wake up early in the morning and they go to school, and they are making many mistakes in the classroom. मेरा जो लेक्चर आप सुनने वाले हो ना आज, सब लोग शायद पहली बार सुन रहे हो ये लेक्चर। आज से पहले आपने ये लेक्चर किसी स्पीकर से नहीं सुना होगा, क्योंकि ये मेरे सेल्फ मेड आइडियाज है, ये मेरे खुद के आइडियाज है। क्लासरूम में अगर यहां पेरेंट्स है, रेज योर हैंड्स एंड आई अप्रिशिएट इफ यू स्टैंड फॉर ए व्हाइल। हरकत में बरकत, आप लोग खड़े रहें तो नींद भी नहीं आएगी, पेरेंट्स को नींद के आने के भी चांसेस होते हैं। पेरेंट्स भी माशाल्लाह देखिए इतने नंबर्स है। Be seated. Big round of applause for their turn up tonight. माशाअल्लाह, be seated. आप लोग मेहनत जो कर रहे हो ना, in solitude, तन्हाई में अपने आप से, if you ever put this question in solitude, that why you are working very hard all through the day, पूरे दिन भर आप मेहनत करते हो, और एक माँ से पूछें कि सुबह से लेकर रात तक आप किचन में पड़ी रहती हैं, भाई क्यों? वाई? व्हाट वुड दे आंसर? मेरे बच्चों के लिए। हर बाप यही बोलता है कि मेरे बच्चों के लिए मैं मेहनत कर रहा हूं, मेरे बच्चों के लिए मैं मेहनत कर रही हूं। All parents would come up with this answer if they ever put this question to themselves, why they are working, why they are going to office, why they are going out, why they are leaving homes and working hard in scorching sun. They come up with a very simple answer, they are doing for their children. और आप अपने बच्चों को स्कूल्स भेजते हो, कॉलेजेस भेजते हो, यूनिवर्सिटीज भेजते हो, और आप खुश हैं कि आपके बच्चा स्कूल गया है। लेकिन जो 6 घंटे आप 8 घंटे आप स्कूल में बैठते हो, पेरेंट्स को क्या पता है कि क्लासरूम के कुछ मिस्टेक्स होते हैं? उसको मैं मिस्टेक नहीं बल्कि एक्सीडेंट कहता हूं। क्लासरूम में एक्सीडेंट्स होते हैं। अगर आपको कॉल आता है कि आपके लड़के का एक्सीडेंट हुआ है, फिर तो उसी पल आप जी कर भी मर जाते हैं, आप होकर भी नहीं होते हैं, इतने टेंशन में आ जाते हो आप, आपका ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। अगर आपको फोन पर कोई इत्तला करता है कि आपके लड़के का रोड पर एक्सीडेंट हुआ है, जान निकल आती है आपकी।
वालिद ऑफिस में है, कोई बताए कि आपके लड़के का रोड पर एक्सीडेंट है, वो सीरियस है, ही गेट्स वरीड, परेशान हो जाता है बाप, क्योंकि उसकी जो जान है ना, वो बच्चों के सीनों में अटकी हुई होती है। इतनी मोहब्बत करते हैं पेरेंट्स अपने बच्चों से। एक इत्तला मिलती है कि आपके बच्चे का एक्सीडेंट हो गया, परेशान हो जाता है। ऐसे क्लासरूम में कितने एक्सीडेंट्स होते हैं, शायद कोई टीचर, कोई लेक्चरर, कोई प्रोफेसर ने यह लेक्चर नहीं दिया होगा जो मैं आपको आज देने वाला हूं इस प्लेटफॉर्म से। बड़े गौर से सुनना आप सब लोग। सबसे पहली जो गलती है, बल्कि मैं उसको गलती नहीं एक्सीडेंट कहता हूं, क्लासरूम में टीचर लेक्चर दे रहा है, पढ़ा रहा है, तो आपकी पहली जिम्मेदारी, व्हाट इज योर फर्स्ट रेस्पॉन्सिबिलिटी, व्हाट इज योर फर्स्ट जॉब, टू लुक एट योर टीचर। टीचर की तरफ आप देखें। ड्राइवर कार चला रहा है, मैंगलोर से बेंगलुरु 400 किलोमीटर सपोज है, और आप बैठकर जा रहे हो, आप बॉस है, एंड यू हैव योर ड्राइवर एंड ही इज ड्राइविंग 390 किलोमीटर्स, वो सेफ लेकर गया आपको, एंड यू हैव ओनली 10 किलोमीटर्स लेफ्ट। सिर्फ 10 किलोमीटर और ड्राइवर को पहुंचाना है आपको, ले आकर डेस्टिनेशन पर, और ड्राइवर आपकी तरफ देखकर कह रहा है कि सर 390 किलोमीटर्स मेरी नजर सड़क पर, रोड पर थी, मैंने आउट ऑफ 400 390 मार्क्स मैंने ले आए, इसका मतलब अबव 98%। लेकिन लास्ट जो 10 किलोमीटर्स है, मैं पीछे आपकी तरफ देखते हुए चलाना चाहता हूं, वुड यू अलो मी? तो आप क्या बोलोगे? पगला तो नहीं गए हो? मेरी तरफ तो कैसे देखकर चलाएगा? एक्सीडेंट हो जाएगा तेरा। तेरी नजर हमेशा सड़क पर रहना है। 400 किलोमीटर्स बेंगलुरु है, 399 किलोमीटर्स वो ड्राइवर आपका बिल्कुल सेफ चलाते हुए लेकर गया, और वो आपसे कह रहा है कि सर बस 1 किलोमीटर में आंख बंद करके चलाऊंगा, वुड यू अलाउ? यू नेवर अलाउ योर ड्राइवर टू ड्राइव विथ आईज क्लोज्ड। आप कभी नहीं चाहेंगे। क्यों? आपको पता है अगर ड्राइवर आंख बंद करके गाड़ी चलाएगा तो एक्सीडेंट होगा, और वर्स्ट आउटपुट एक्सीडेंट का क्या हो सकता है? मौत हो सकती है। एक ड्राइवर बेचारा जो 399, अगर हम लोग को 500 में 400 भी मार्क्स आते हैं तो हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। 450 मार्क्स आए, सेलिब्रेशन होता है। 490 आ जाए, पूरे फैमिली में सेलिब्रेशन होता है, पूरे स्कूल में सेलिब्रेशन होता है, पूरे टाउन में सेलिब्रेशन होता है। ड्राइवर भी तो अचीव कर रहा है ना। कितनी दफा ड्राइवर सेफली ले जाता है स्कूल बस को और ऑफिसर्स को, लेकिन उसको कोई सर्टिफिकेट नहीं मिल रही है, कोई शाबाशी नहीं मिल रही है, कोई वाहवाही नहीं मिल रही है, बल्कि कह रहा है मैं 40 साल से गाड़ी चला रहा हूं, आधा किलोमीटर बस बेंगलुरु है, अब आधा किलोमीटर में आंख बंद करके चलाना चाहता हूं, वुड यू अलो? नो, यू नेवर अलो द ड्राइवर। You want your driver to focus on the road. This way, I want you all students to focus on your teacher. आपकी नजर कहां होनी चाहिए? टीचर पर होनी चाहिए। लेकिन majority of the students, they do not look at the teacher when the teacher is delivering a lecture. वहीं फेल हो गए वो लोग, वहीं एक्सीडेंट हुआ है वो लोग का। जब स्टूडेंट्स की नजर टीचर से हटती है तो क्या होता है? बताएं सब लोग जोर से। एक्सीडेंट। क्या हो रहा है? एक्सीडेंट। और कैसा एक्सीडेंट? कोई साउंड नहीं आता है, कोई आवाज नहीं, कोई ब्लड नहीं, कोई पेन नहीं, लेकिन बाद में आपको पता चलेगा उस एक्सीडेंट का साइड इफेक्ट कैसा होने वाला है। आफ्टर 20-30 years you get to know। 30 साल पहले एक्सीडेंट हुआ है और आज कई लोग पछता रहे हैं। Those who are in 40s and 50s, they know that how they met with an accident in the classroom। ये पहला मिस्टेक करते हैं। विराट कोहली खेल रहा है और 1 लाख क्रिकेट के दीवाने स्टेडियम में बैठकर देख रहे हैं, और अनुष्का भी बैठी हुई है।
तो विराट कोहली की नजर अनुष्का अपने बेगम पर होनी चाहिए या फिर बॉलर पर होनी चाहिए? किस पर होनी चाहिए? बॉलर पर होनी चाहिए। अगर विराट कोहली ने सेंचुरी लगाना है 70, 80, 90 बॉल्स खेलकर, तो 90 बॉल्स फेस कर रहा है विराट कोहली। 90 बॉल्स, 1 लाख लोग बैठे हुए ऑडिटोरियम में या फिर ग्राउंड में, और वो लोग चिल्ला रहे हैं, गा रहे हैं, क्रिटिसाइज कर रहे हैं, क्या क्या शोर शराबा कर रहे हैं। क्या विराट कोहली का फोकस कभी डिस्टर्ब होता है? कभी फोकस डिस्टर्ब नहीं होता है। क्यों? He is a goal oriented individual. He remains focused. उसकी नजर सिर्फ बॉलर पर होती है, बॉलर के हाथ पर होती है, हाथ के उंगलियों पर होती है, उंगलियों के हरकत पर होती है कि ये बाउंसर डाल रहा है, यार्कर डाल रहा है, स्लोअर वन डाल रहा है। इतनी नजर रखना पड़ता है, तब जाकर विराट कोहली बनेंगे। आसान नहीं है। विराट कोहली को अप्रिशिएट करना बहुत आसान है, लेकिन विराट कोहली बनना बहुत टफ है। उसके फोकस को सलाम करता हूं मैं। ये फोकस क्या स्टूडेंट्स करते हैं? विराट कोहली कामयाब क्यों हो रहा है? बिकॉज ऑफ द फोकस। 1 लाख लोग चिल्लाते हुए डिस्टर्ब नहीं कर पा रहे हैं। आप सिर्फ 25 बच्चों के साथ क्लासरूम में बैठकर डिस्टर्ब हो रहे हो, डिस्ट्रैक्ट हो रहे हो, डिविएट हो रहे हो, सिर्फ 25 बच्चों में। और विराट कोहली को 1 लाख लोग डिस्टर्ब कर रहे हैं, लेकिन उसको कोई असर नहीं हो रहा है उस पर। क्यों? बिकॉज ही रिमेन्स फोकस्ड। उसकी नजर बिल्कुल बॉलर के उंगलियों पर होती है। तो पहला जो मिस्टेक करते हैं, जिसको मैं एक्सीडेंट कहता हूं, वो है नजर। नजर जमाए रखना, टीचर पर आपकी नजर होना। When I was learning English grammar, I started at the age of 28. I had passion for the language. I was working for a reputed hospital and I had no knowledge of English. I had Anglophobia, fear of English language. And I used to get calls from very reputed doctors, and I used to avoid taking the calls because I did not have that courage to speak in English language. In fact, I had no knowledge of that language. There I decided. I studied 12 years at school and 3 years at college. Despite spending 15 to 20 years, I'm not able to interact with doctors for 30 seconds on telephone in English language. Shame on me. मैं अपने आप से ऐसे बात करता था. There I decided, I have 2 options. या तो मैं शहर से गांव वापस चला जाऊं, या फिर शहर में रहकर अंग्रेजी सीखूं. Then I decided to learn the language. While I was learning, I fell in love with the language. Youngsters, they fall in love. लेकिन उनका लव जो होता है वो ऑपोजिट सेक्स पर होता है. Even I fell in love, but I fell in love with the language. That's why I have become a teacher and I have trained over 3 lakh individuals. And Alhamdulillah, I have got an opportunity to train the family members of Imam-e-Haram as well, mashallah. Because I was very committed student. मेरे और टीचर के बीच में कोई स्टूडेंट आता तो मैं टीचर को ऐसे देखता, इधर कोई आ जाता फिर तो मैं ऐसे देखता. मैं कभी नहीं चाहता कि मेरे और टीचर के बीच में कोई आकर खड़े हो जाए. इतना इन्वॉल्व होकर 3 साल में अंग्रेजी सीखा. रात में 7 से 9 बजे, कभी 9 से 11 बजे अलग अलग बैचेस हुआ करते थे. 3 साल में आई रिमेंबर आई नेवर यार्नड इन द क्लास. मैं कभी जमाई नहीं लिया. मुंह खोलकर जो जमाई लेते ना उसको यार्न कहते इंग्लिश में, YAWN. I never yarned in 3 years. I don't remember. I might have yarned, but I do not remember if I ever yarned in the class. I remained very active and I remained very focused in the classroom. बहुत फोकस रहा मैं. आज क्लासरूम के मिस्टेक्स पर मैं लेक्चर दे रहा हूं आपके सामने. आप लोग जो क्लासरूम में मिस्टेक्स करते हैं, जो पेरेंट्स को नहीं पता, टीचर्स को पता हो तो टीचर्स बताते भी नहीं. ये पहला मिस्टेक आपने नहीं करना है. दूसरा जो मिस्टेक आप करते हो क्लासरूम में, वो आप टीचर की तरफ देखते जरूर हो, लेकिन जो अल्लाह ने कान दिया है ना हमें, उसका इस्तेमाल नहीं करते हैं आप. टीचर को सुन नहीं रहे होते हैं. टीचर को लगता है ऐसा है कि वो स्टूडेंट मेरी तरफ देख रहा है.
Rather, many students, they deceive teachers, putting them in certain impression that they are looking at you, it means they are listening. No, they are just looking, but they are not listening at all. आप सुन नहीं रहे होते हैं, आप सिर्फ देख रहे हो, आप बल्कि डिसीव कर रहे हो अपने टीचर को, आप धोखा दे रहे हो, एक्टिंग कर रहे हो। शाहरुख खान शर्मा जावे, दिलीप कुमार शर्मा जावे, ऐसे बैठकर लेक्चर टीचर की तरफ, और टीचर खुश हो रहा है, अरे मेरी तरफ देख रहा है, कितना इंटरेस्टेड है ये, कितना पैशनेट है, लेकिन आप सुन ही नहीं रहे हो। अल्लाह ने जो दुकान दिए उसका इस्तेमाल नहीं कर रहे हो। तो 70% फिल्टर हो रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपको रोल मॉडल बनना है, आपको कामयाब बनना है, लेकिन 80% वहीं फिल्टर हो गए ना, जो देख नहीं रहे हैं वहीं आउट हो गए, कचरा निकल गया है। बहुत कम लोग बचते हैं। उन कम लोग में जो देख भी रहे हैं और सुन भी रहे हैं, माशाअल्लाह, वो भी एक मिस्टेक करते हैं, उनका भी एक्सीडेंट होता है। वो देख भी रहे हैं, वो सुन भी रहे हैं, लेकिन वो समझते नहीं है। जो अल्लाह ने दिमाग दिया है ना, उसका इस्तेमाल नहीं कर रहा है। माइंड, ब्रेन जिसको कहते हैं, इसका यूज नहीं करता है स्टूडेंट। वो भी तीसरा मिस्टेक है, वो भी बहुत बड़ा एक्सीडेंट है। वहां एक मिस्टेक होता है। बहुत कम होते हैं क्लासरूम में बच्चे बैठे हुए, वो देख भी रहे हैं, वो सुन भी रहे हैं, वो समझ भी रहे हैं, फिर भी वो और एक मिस्टेक करते हैं। वो क्या मिस्टेक है? वो घर जाकर इंस्टाग्राम पर बिजी हो जाते हैं, वो घर जाकर पबजी पर बिजी हो जाते हैं, वो घर जाकर टिकटॉक पर बिजी हो जाते हैं। बहुत कम बंदे होते हैं जो प्रैक्टिस करते हैं, बहुत कम। देर आर वेरी फ्यू इंडिविजुअल्स हु प्रैक्टिस एट होम। यहां कुछ डॉक्टर्स भी होंगे, उन्हें 10-10, 15-15 साल लगे हैं डॉक्टर बनने के लिए। आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ देयर स्कूलिंग दे स्पेंड अबाउट 10 to 15 years टू रिसीव द सर्टिफिकेट। अब ये 15 साल के बाद उनको जाकर पूछे कि डॉक्टर साहब आप क्या कर रहे हो, तो वो डॉक्टर कहेगा मैं प्रैक्टिस कर रहा हूं। जो इतनी मोटी मोटी किताबें मैंने पढ़ी है ना, उसकी प्रैक्टिस चल रही है। आई एम प्रैक्टिसिंग दीज डेज। इसीलिए एक सेइंग मशहूर है ना, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो यहां बच्चे आज के इस दौर के, इस सोशल मीडिया के जमाने के बच्चे प्रैक्टिस नहीं करते हैं। एक तो टीचर को देखते नहीं, देखते हैं तो सुनते नहीं, सुनते हैं तो समझते नहीं, देख भी रहे हैं, सुन भी रहे हैं, समझ भी रहे हैं, लेकिन प्रैक्टिस नहीं करते हैं। ये बहुत जरूरी है प्रैक्टिस करना, घर पर कुछ वक्त निकालना। अब ये जो करने वाले होते हैं ना, 40 बच्चों में बमुश्किल 5 से 10 बच्चे होते हैं जो ये 4 चीजें करते हैं। वो जो 4 चीजें कर रहे हैं ना, जो देख रहे हैं, जो सुन रहे हैं, जो समझ रहे हैं, जो प्रैक्टिस कर रहे हैं, वो भी एक मिस्टेक करते हैं। वो उनका भी एक्सीडेंट होता है। वो क्या? वो अपने नॉलेज को शेयर नहीं करते दूसरों के साथ में। दे आर वेरी सेल्फिश स्टूडेंट्स, दे आर वेरी मीन स्टूडेंट्स, दे आर वेरी स्टिंजी स्टूडेंट्स। बड़े कंजूस और बखील लोग होते हैं, अपना इल्म नहीं बांटते हैं। चैरिटी, जब कोई 1 करोड़ रुपए देता है तो टॉक ऑफ द टाउन हो जाता है, उसने 1 करोड़ डोनेशन दिया है। लेकिन एक्सपर्ट्स कहते हैं इम्पार्टिंग एजुकेशन इज वन ऑफ द बेस्ट फॉर्म्स ऑफ चैरिटी। जब आप अपने नॉलेज को शेयर करते हो तो आपके नॉलेज में इजाफा और पुख्तगी आ जाती है, उसमें जबरदस्त पुख्तगी आ जाती है। यू गो इन टू द प्रोफंडिटी ऑफ द सब्जेक्ट। बहुत कम बच्चे होते हैं जो अपने नॉलेज को शेयर करते हैं, हेल्प करते हैं, दूसरों को सिखाते हैं। अब इतनी सारी चीजें क्या आप करते हो कि रोजाना अपनी नजर टीचर पर ही रखें, सुने टीचर को ही, किसी और को ना सुने? दिमाग पूरा यूज करें स्कूल में, फिर घर आए तो प्रैक्टिस करें, फिर अपने क्लासमेट्स जिसको आप क्लोज फ्रेंड कहते हो, आपको अगर कोई चीज आती है तो आपके बेस्ट फ्रेंड को भी वो चीज आनी चाहिए। यू शुड बी इनफ जेनरस टू मेक श्योर दैट योर फ्रेंड्स टू लर्न द थिंग्स व्हाट यू हैव लर्न। बहुत कम बंदे होते हैं जो अपनी नॉलेज दूसरों से शेयर करते हैं।
और ये सारी चीजें जो करते हैं उन्हें परफेक्शन आता है। क्या आता है उन्हें? परफेक्शन। परफेक्शन ऐसे नहीं आता प्यारे बच्चों, ये सारी चीजें करने के बाद परफेक्शन आता है। देखना, सुनना, समझना, प्रैक्टिस करना, नॉलेज दूसरों को शेयर करें तो परफेक्शन आता है। ये परफेक्शन लेकर आप अपने घर के बाहर कदम रखोगे, आप गरीब हैं, आप झोपड़पट्टी में आपकी जिंदगी गुजर रही है, स्लम्स में आप हो, लेकिन ये 5 चीजें कर कर जो परफेक्शन आपने अचीव किया, ये परफेक्शन के साथ जब आप अपने झोपड़ी से बाहर कदम रखते हो तो एक गिफ्ट खड़ी होती है वहां पर, घर के सामने एक तोहफा नजर आता है। वो जो गिफ्ट है वो मर्सिडीज बेंज नहीं है, एक सवारी आपको नजर आएगी। वो सवारी मर्सिडीज बेंज नहीं है, रेंज रोवर नहीं है, BMW नहीं है। वो सवारी का नाम है कॉन्फिडेंस। उस सवारी का नाम क्या है? कॉन्फिडेंस। और जो भी उस सवारी पर बैठकर सवार होते हैं उसका डेस्टिनेशन है सक्सेस। वो सीधा आपको अपने डेस्टिनेशन पर ले आकर छोड़ता है जिसका नाम है सक्सेस। कामयाब आप होना चाहते हो तो आपको एक सवारी पर सवार होना पड़ेगा। वो सवारी BMW, मर्सिडीज बेंज, रेंज रोवर नहीं है, वो ऑडी नहीं है। वो सवारी का क्या नाम है? कॉन्फिडेंस। तो आज से आप अपने पेरेंट्स को पूछना छोड़ दें कि डैडी मुझे बाइक दिलाई है, डैडी मुझे कार दिलाई है। ये कार, ये बाइक से आपको कामयाबी नहीं मिलने वाली है, कसम खुदा की। आपको वो सवारी लेना है जिसका नाम है कॉन्फिडेंस, और उस पर जो भी सवार होता है वो सीधे डेस्टिनेशन पर जाता है, और उस डेस्टिनेशन का नाम है सक्सेस। आपको अगर कामयाब होना चाहते हो तो ये तमाम चीजों से गुजरते हुए आपको परफेक्शन अचीव करना है। परफेक्शन अचीव करेंगे तो अल्लाह आपको एक सवारी गिफ्ट देगा, उस सवारी का नाम है कॉन्फिडेंस। इसीलिए दुनिया कहती है कॉन्फिडेंस इज द की टू सक्सेस। आपने सुना कभी ये? प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, ये सुना आपने? कॉन्फिडेंस इज द की टू सक्सेस। लेकिन मुझे बताएं कि कॉन्फिडेंस कैसे आता है इंसान को? ये तमाम चीजें करने से कॉन्फिडेंस आता है। तो ये जो मिस्टेक्स आज से 20 साल पहले, 30 साल पहले, जो आज 50 साल के हैं, वो जब 20 साल के थे, वो जब 15 साल के थे, वो लोगों ने भी क्लासरूम में ऐसे मिस्टेक्स किए हैं। आज अपने बीवी बच्चों को खिलाने के लिए पैसे नहीं है, आज अपने बच्चों की स्कूल में फी देने के लिए पैसे नहीं है, आज तड़प रहे हैं वो। क्यों? दे मेड मिस्टेक्स, दे मेट विथ एन एक्सीडेंट इन द पास्ट, जिसका दर्द आज हो रहा है। क्योंकि वो जो एक्सीडेंट्स हुए ना क्लासरूम में, कोई आवाज नहीं, कोई ब्लीडिंग नहीं, लेकिन पेन जब आपकी शादी होगी, बच्चे होंगे, बच्चों के ख्वाहिशात होंगे, बच्चों के ड्रीम्स होंगे, डिजायर्स होंगे, और व्हेन पेरेंट्स आर नॉट एबल टू फुलफिल देयर ड्रीम्स, देयर इट पिंचेस, देयर यू फील द पेन। वहां आपको पेन होगा। आज आप दुनिया को नहीं समझते हैं, लेकिन अगर आपको कामयाब होना है तो आप जो 40 साल में जो बंदे सोच रखते हैं ना, वो सोच आपको आज डेवलप करना है। मौलाना अबुल कलाम आजाद, द फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ दिस नेशन, when he was 12 years old, he set up a library at home. उस जमाने में किताबें आसानी से मैसर नहीं होती थी, लेकिन आपने अपने घर में बाकायदा एक लाइब्रेरी सेटअप की थी, किताबों से मोहब्बत हो गई थी। तो मुस्तकबिल फ्यूचर में जाकर क्या बने? स्पोर्ट्स मिनिस्टर नहीं बने, एजुकेशन मिनिस्टर बने। क्यों? मोहब्बत किससे थी? किताबों से थी। आपकी मोहब्बत पबजी से है, टिकटॉक से है, इंस्टाग्राम से है, सोशल मीडिया से है, तो आपको कामयाबी नहीं मिलेगी। कुछ पैसे मिल जाएंगे टिकटॉक से, लेकिन जनरेशन्स नहीं बनेंगे इससे। लोग अजीब अजीब हरकतें कर रहे हैं, वीडियोस बना रहे हैं, कोई नाच रहा है, कोई कूद रहा है, कोई अजीब हरकतें कर रहा है, उससे पैसे तो मिल रहे हैं। याद रखें, पैसे मिलेंगी लेकिन नस्लें नहीं बनेंगी उससे। नस्लें अगर आपने बनाना है ना, जनरेशन्स आपने अगर बनाना है ना, अपने कैरेक्टर से बनाना, अपने एजुकेशन से बनाना, अपने अचीवमेंट से बनाना,
अपने अकम्पलिशमेंट से आपने सबने बनाना है इंशाअल्लाह। ये जो पबजी है, ये जो टिकटॉक है, ये जो इंस्टाग्राम है, ये धोखे की दुनिया है। अल्लाह ने पहले से कह रखा है कि ये जो दुनिया है ये धोखे का घर है, यहाँ डिसेप्शन ही डिसेप्शन है। तो ये तो खुला डिसेप्शन है सोशल मीडिया, बहुत कम इस्तेमाल करें। लोग कहते नहीं मैं अच्छी चीजें देखने के लिए वीडियोस चेक करता हूं, कसम खुदा की अच्छे चीज की तलाश में 99 गलत चीजें देख लेते हो आप। एक अच्छी चीज देखने के चक्कर में हम सब लोग 99 गलत चीजें देखकर अपने आंखों को इन्वॉल्व कर रहे हैं, गुनाह में डाल रहे हैं हम लोग। जितना हम फोन से दूर रहेंगे उतनी हमें कामयाबी मिलेगी। मैं जब लेक्चर्स देता हूं तो 8-8 घंटे मेरे लेक्चर्स होते हैं, 8 घंटे मेरे हाथ में फोन नहीं होता है। दुनिया का कोई भी बंदा कॉल कर ले, मेरे रूम में पड़ा हुआ रहता है फोन। आई एम लीस्ट बॉदर अबाउट द वर्ल्ड व्हेन आई हैव माय स्टूडेंट्स इन द क्लासरूम। मेरी दुनिया मेरे स्टूडेंट्स हो जाती है मैं पढ़ाते वक्त में। मुझे कौन कॉल कर रहा है मुझे जरा भी परवाह नहीं होती है। आप लोग को भी ऐसा ही होना चाहिए। जब हाथ में किताब हो और आप प्रैक्टिस कर रहे हो अपने घर में, यू शुड बी लीस्ट बॉदर अबाउट योर फ्रेंड्स, यू शुड बी लीस्ट बॉदर अबाउट सोशल मीडिया। विराट कोहली के हाथ में जब बैट होता है, वो क्रिकेट खेल रहा होता है, क्या उसके जेब में फोन होता है? आंसर मी प्लीज। Are they allowed to use mobile phones while they are playing cricket? When you have books in your hands, then why would you have phones with those books? आज ये सबसे बड़ा मसला है। A dog running after 2 bones will get neither, मेरे उस्ताद कहते थे। A dog running after 2 bones will get neither, कुछ नहीं मिलता उसको। आप देखें रोनाल्डो फुटबॉल खेल रहा है, क्या उसके हाथ में कभी फोन होता है? नहीं होता है। 100% इन्वॉल्व्ड है अपने गेम में। उसी तरह जब आपके हाथ में पेन है, जब आपके हाथ में किताबें हैं, 1 घंटा पढ़ाई कर रहे हो तो विराट कोहली जैसी पढ़ाई करो। यानी विराट कोहली जैसा खेलता है, आप बुक्स के साथ वैसा खेलो, पढ़ाई वैसे करो। आप हाथ में फोन नहीं होना चाहिए, कोई फ्रेंड्स नहीं होना चाहिए, कोई डिस्टरबेंस नहीं होना चाहिए। टोटल कमिटमेंट, टोटल इन्वॉल्वमेंट। तो फिर इंशाअल्लाह ये मैंगलोर शहर से कई डॉक्टर एपीजे कलाम पैदा होंगे इंशाअल्लाह, कई मौलाना अबुल कलाम आजाद पैदा होंगे इंशाअल्लाह, कई एजुकेटर्स पैदा होंगे इंशाअल्लाह, कई साइंटिस्ट पैदा होंगे इंशाअल्लाह, कई रिनाउंड डॉक्टर्स बनेंगे इंशाअल्लाह, कई क्रिएटिव इनोवेटिव इंजीनियर्स बनेंगे इंशाअल्लाह। आपके पास में जहां है, आप ये जहां को पा सकते हो। यू कैन अचीव वेरी बिग थिंग्स इन योर लाइफ, जस्ट रिमेन फोकस्ड। आप लोग पढ़ाई को थाम ले अपने हाथों में, किताबों को। ये आपको उस मुकाम तक ले जाएगी जो बड़े बड़े ऑफिसर्स के साथ बिठा देगी। आपको बड़े बड़े मिनिस्टर्स के साथ बैठने को चांस मिलेगा, बड़े बड़े ऑफिसर्स आपको सल्यूट करेंगे इंशाअल्लाह। एजुकेशन इंसान को रेपुटेशन दिलवाता है, आपको रेस्पेक्ट मिलती है सोसाइटी में। आप टिकटॉक नाचते हो, आप 10 लाख कमाते हो, लोग हंसेंगे आपको देखकर, अरे चिचोरा जा रहा है, अजीब अजीब वीडियोस बनाता है। आप 10 लाख कमा रहे हो लेकिन कोई आपकी रेस्पेक्ट नहीं है सोसाइटी में। कोई बंदा 25,000 कमाता है, टीचर है, कई बंदों की जिंदगियों को संवार रहा है, पैदल जा रहा है, तो लोग झुककर सलाम करेंगे, मास्टर जी आदाब, नमस्ते, नमस्कार। क्यों? वो सोसाइटी को डेवलप कर रहा है, वो लोगों की जिंदगियों को संवार रहा है। तो काम ऐसा करो जिससे दूसरों की जिंदगियां संवर जाए, दूसरों को फायदा पहुंचे। ऐसी जिंदगी आप सबने जीना है। और प्यारे बच्चों, आप लोग को एक बहुत प्यारा मैसेज मैं देना चाहता हूं। इमेजिन करें ये वर्ल्ड कप का सीजन है, सब लोग माशाल्लाह एंजॉय कर रहे हैं वर्ल्ड कप को, और इंडिया बहुत जबरदस्त खेल रही है, और हम सब चाहते हैं कि इंडिया वर्ल्ड कप जीतें, अपना नाम कंट्री का रोशन करें, और उसी तरह इंडिया आगे भी बढ़ रही है। आप इमेजिन करें इंडिया वर्ल्ड कप जीतता है, विराट कोहली मैन ऑफ द मैच अवार्ड मिलता है, और विराट कोहली को मैन ऑफ द सीरीज अवार्ड मिलता है, और आप ऑटोग्राफ के लिए जाते हो। यूटी खादर साहब भी मैच बैठकर देख रहे हैं, और आप बोले कि अरे यूटी खादर साहब, स्पीकर साहब आपके घर के पास में मैं रहता हूँ, थोड़ा विराट कोहली से मिलाइए ना। तो आपके लिए बहुत आसान है, कम ये यूटी खादर साहब बुलाए विराट कोहली को, बोले कि भाई ही वांट्स योर ऑटोग्राफ।
तो विराट कोहली ने जिस बैट से फाइनल मैच में इंडिया को वर्ल्ड कप जिताया, उस बैट पर ऑटोग्राफ करके अगर आपके हाथ में बैट देते हैं विराट कोहली साहब, तो वो मोमेंट आपके लाइफ में कैसा होगा? अगर कोई यंगस्टर को वो बैट मिल जाता है ना, तो वर्ल्ड कप मिलने पर जितनी खुशी पूरे इंडियंस को होती है ना, आपको उतनी खुशी होगी कि विराट कोहली का बैट मिला है मुझे। रोनाल्डो ने अपने शूज दिए हैं आपको, क्या दिए हैं? शूज दिए हैं, तो आप पागल हो गए कि रोनाल्डो के शूज मुझे मिले हैं, क्योंकि रोनाल्डो ने मुझे गिफ्ट किया है। विराट कोहली ने मुझे टी शर्ट दिया है, अपनी टी शर्ट। आप इतना खुश हो जाते हो। नौजवान बच्चों, वो जो शूज आपके बाप के पास पैसे नहीं थे, मेहनत कर करके पैसों को जोड़ जोड़ कर आपको जो फर्स्ट पेयर ऑफ शूज आपको जो आपके वालिद ने गिफ्ट किया ना, दोज गिफ्ट्स, यानी दैट पेयर ऑफ शूज इज बिगर देन द शूज गिफ्टेड बाय रोनाल्डो। आपको जो पहला पेन आपके डैडी ने जो दिया है ना, दैट इज बिलियन टाइम्स बिगर देन द बैट गिफ्टेड बाय विराट कोहली। जो विराट कोहली ने अपना बैट आपको दिया, आपके डैडी के मेहनत के पैसों से जो पेन खरीद के डैडी ने आपको दिया, बेटा ये देखो पेन, जिंदगी संवारना तो इससे, ये देखो किताब, जिंदगी संवारना इससे, ये देखो बेटा स्कूल बैग मैं गिफ्ट दे रहा हूं आपको। इससे बड़े गिफ्ट्स आपको इस जहां में कोई नहीं दे सकता है। आपको कोई बिलियन रुपीस भी दे सकता है, आपको कोई घर दे सकता है, आपको कोई बहुत बड़ा गार्डन दे सकता है, लेकिन जब आप छोटे थे, वालिद के पास पैसे नहीं थे, मेहनत कर करके पैसे जोड़ जोड़ कर जो शूज आपको गिफ्ट दिए हैं, जो स्कूल का बैग आपको गिफ्ट दिए हैं, जो पेन आपको गिफ्ट दिए हैं, ये प्राइसलेस गिफ्ट्स है। इसका रिटर्न आपने देना है। वादा करें आज इस ऑडिटोरियम में कि मैं इसका रिटर्न मेरे पेरेंट्स को दूंगा, और अल्लाह से दुआ करें कि या अल्लाह मेरे सर पर मेरे वालिदैन का साया तादेर कायम फरमा, लंबी जिंदगी दे मेरे वालिदैन को। मैं कुछ बड़ा करके मेरे पेरेंट्स को गिफ्ट देना चाहता हूं। मेरे पेरेंट्स ने मुझे प्राइसलेस गिफ्ट दिए थे कुछ साल पहले जब मैं छोटा था। वो प्राइसलेस गिफ्ट्स क्या है? आज से फ्यूचर में कभी भी कोई आपसे पूछे आपको जिंदगी में बेस्ट गिफ्ट क्या मिला है, तो आपने क्या जवाब दोगे? When I was a kid, my dad gifted me a pen. My dad gifted me a school bag. My dad gifted me a pair of shoes. My dad gifted me a school uniform. Those are the priceless gifts. पूरी दुनिया में बिकने वाले चीजों को बेच दें और तराजू के एक पल्ले में रख दें, और आपके अब्बू की मेहनत की कमाई से जो आपको गिफ्ट्स मिले हैं ना, पेन, बैग, यूनिफॉर्म, बुक्स, उसका मुकाबला नहीं कर सकते हैं। ऐसी मेहनत करके वालिदैन ने आपको गिफ्ट दिए हैं। एक विराट कोहली का बैट मिल जाता है तो आप बड़े खुश हो जाते हो। विराट कोहली का बैट लेकर आप पूरी दुनिया को दिखाओगे, इंस्टाग्राम पे डालोगे, सोशल मीडिया पे डालोगे कि देखो दुनिया वालों, विराट कोहली ने मुझे गिफ्ट दिया है। स्कूल की फी हर महीना आपके डैडी बांधते हैं। क्या कभी इंस्टाग्राम में आपने डाला डैडी की फोटो कि माय फादर हैज पेड माय स्कूल फी दिस मंथ? कोई किया ऐसा? कोई नहीं किया। यू नेवर थैंक्ड योर डैड ever on social media platform stating that my dad has paid the school donation this year. किसी में जरूरत नहीं है अपने डैडी को थैंक यू बोलने के लिए सोशल मीडिया पर। गिफ्ट लेकर आप थैंक यू बोलते हैं। एक बर्थडे गिफ्ट कोई अगर फ्रेंड देता है, पागल हो जाते हो, खुशी में झूम उठते हो। ऐसे कितने गिफ्ट्स आपके डैडी आपको देते हैं। आपकी माँ रोजाना मेहनत करके आपको खिलाती है। एक फ्रेंड आपको होटल लेकर जाता है ट्रीट देने के लिए, जिंदगी भर याद रह जाती है आपको। सो एंड सो फ्रेंड ऑन सो एंड सो डेट दे गिव अ वंडरफुल ट्रीट टू ऑल ऑफ अस एंड इट रिमेन्स एवर इन योर लाइफ। हमेशा याद रखते हो आप। लेकिन वो माँ जो रोजाना मेहनत करती है, जिसकी कोई छुट्टी नहीं होती है, सारे इंस्टीट्यूशंस के छुट्टियां हैं पूरी दुनिया में। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी हॉलीडेज फेस्टिवल के दिन बंद हो जाता है, स्कूल्स फेस्टिवल्स के दिन बंद हो जाते हैं, कॉलेजेस
फेस्टिवल्स के दिन बंद हो जाते हैं, यूनिवर्सिटीज फेस्टिवल्स के दिन बंद हो जाते हैं, ऑफिसेस फेस्टिवल्स के दिन बंद हो जाते हैं। पूरी दुनिया को फेस्टिवल्स में छुट्टी मिलती है, सिर्फ एक को छुट्टी नहीं मिलती है इस दुनिया में, और वो है माँ। फेस्टिवल्स के दिन ज्यादा काम करना होता है माँ को, ज्यादा मेहनत करना होता है माँ को, नए नए चीजें बनाना होता है माँ को। बाप एंजॉय कर रहा है, फादर एंजॉय कर रहा है, बच्चे एंजॉय कर रहे हैं, लेकिन माँ किचन में जाकर और ज्यादा देर मेहनत कर रही है। और उसको हमने आज तक एक दफा थैंक यू नहीं कहा, एक दफा नहीं पूछा, माँ आप मेरे लिए रोजाना इतना मेहनत करती है, मैं ऐसा क्या गिफ्ट दूं जो आप हमेशा खुश रहें लेकर। तो वो बताए, माँ क्या बोलेगी, बेटा पढ़ाई अच्छी करना, नाम रोशन करना, मेहनत करना, अच्छी जॉब हासिल करना, पोस्ट ग्रेजुएशन करना, यही गोल होता है। लेकिन मैं हैरान हूं, मैं परेशान हूं, 7th स्टैंडर्ड के बच्चे मेरे पास आते हैं, माएँ रो रही हैं, दे आर गेटिंग एडिक्टेड टू ड्रग्स। 7वीं जमात का बच्चा 10-10 सिगरेट पी रहा है, एक माँ आकर दहाड़े मारते हुए रो रही है मेरे पास में। उसका चेहरा देखा मैं, इतना इनोसेंट फेस है, इतना इनोसेंट फेस है, मैं कहूंगा कि आप लोग देखेंगे तो उस बच्चे को कहेंगे कि इतना इनोसेंट फेस आपने कभी जिंदगी में नहीं देखा है। और वो रात में 1-1 बजे घर आता है और माँ को डराता है। बाप नहीं है, बाप सऊदी अरेबिया में है, माँ पर हावी हो जा रहे हैं बच्चे, बच्चे हेवी खाकर मोटे ताजे हो रहे हैं और माँ पर चढ़ जा रहे हैं। एक ऐसा ही स्टूडेंट का वाकया, सऊदी अरेबिया में डैड है और लड़की 13 इयर्स की है, माँ के सीने पर बैठकर छुरी लेकर, अगर फोन आप नहीं देती हो मुझे, मैं गला काट दूंगी आपके, और मार मार के माँ की गर्दन को ऐसा टेढ़ी कर दिया है। मेट्रोपोलिस होटल में मेरे वर्कशॉप्स होते हैं, ऐसी गर्दन लेकर माँ आ रही है, सर मेरी बच्ची की जिंदगी खराब हो गई है, उसको ठीक करो। मैंने पूछा आपको क्या हुआ, रोते हुए बता रही है कि नहीं मेरी बेटी ने मारा है मुझे। इसके लिए आप पैदा हुए, जिसके लिए दिन रात मेहनत करते हैं आपके पेरेंट्स, और आप अपने पेरेंट्स को मारते हो, गाली देते हो। मैं ताजुब करता हूं, 7th स्टैंडर्ड के बच्चे ड्रग्स में एडिक्ट हो रहे हैं। याद रखें, आप कुछ भी हो जाएं, रिकवरी होने के चांसेस हैं। आप पढ़ाई में अच्छे नहीं हैं, अच्छे टीचर मिल जाए तो आपकी मैथ अच्छी हो जाएगी, आपकी साइंस अच्छी हो जाएगी, आपकी ग्रामर अच्छी हो जाएगी। लेकिन आप सोशल मीडिया पर आपका एडिक्शन है, देयर इज ए चांस उस एडिक्शन से आप बच सकते हैं। आपको क्रिकेट की दीवानगी है, कोई एक अच्छा मोटिवेशनल स्पीकर मिल जाए, या फिर कोई मेंटर मिल जाए, या फिर कोई आलिम दीन मिल जाए, तो आपको जिना से बचा सकते हैं, आपको एडिक्शन से बचाया जा सकता है। लेकिन ड्रग्स एक ऐसी चीज है, वापस नहीं आ सकते। एक दफा आप गए, पूरी जिंदगी आपकी तबाह हो गई है, पूरी जिंदगी। और हर माँ हर बाप यही समझता है, और यही समझते हैं कि मेरे बच्चे इनोसेंट हैं। कभी अपने बच्चों को इनोसेंट ना समझें। अल्लाह ने 2 आंख दिए हैं, एक आंख से मोहब्बत करें अपने बच्चों को, दूसरी आंख बिल्कुल शक की नजर से रखना कि कहीं मेरा बच्चा खराब तो नहीं हो रहा है। और अगर आपका लड़का कह रहा है कि मॉम डोंट यू हैव कॉन्फिडेंस इन मी, डू आई एवर डू सच थिंग्स, ऐसा सवाल अगर कर रहा है तो आपने जवाब देना है कि बेटा मुझे आप पर पूरा कॉन्फिडेंस है, बेटी आप पर मुझे पूरा कॉन्फिडेंस है, लेकिन आपके एज पर मुझे कॉन्फिडेंस नहीं है, माहौल पर मुझे कॉन्फिडेंस नहीं है, इस जमाने पर मुझे कॉन्फिडेंस नहीं है। यह जमाना आपको तबाह कर देगा, ये जो सोशल मीडिया एज है ये चीज आपको तबाह कर देगी। आपने नजर रखना है, आप मेहनत कर रहे हो अपने बच्चों के लिए, लेकिन आपकी नजर अपने बच्चों पर नहीं है कि कौन से बच्चों के साथ आपके बच्चे का उठना बैठना है, इस पर डिपेंड करता है। एक बंदा 10th क्लियर किया, 11th में उसका एडमिशन हुआ है, या 12th क्लियर किया है एंड ही इज एडमिटेड टू यूनिवर्सिटी और ये कॉलेज में एडमिशन लिया है, तो नए दोस्त बनाता है वहां पर। 10th के बाद कॉलेज में जाता है, स्कूल यूनिफॉर्म हट जाता है और कलर ड्रेसेस पर आते हैं और साइकिल से बाइक पर आते हैं,
और वो बाइक पर जब कॉलेज को जाते हैं तो वहाँ पर पहले जो 3 दिन 5 दिन होते हैं ना, 40 बच्चे बैठे हुए होते हैं क्लासरूम में। वो 40 बच्चों में आपका बच्चा दोस्ती सिर्फ 3 या 5 बच्चों से ही करेगा, पूरे 40 बच्चों से नहीं करेगा दोस्ती, सिर्फ 3 या 5 बच्चों से करेगा। अनफॉर्चुनेटली अगर वो 3 बच्चे ड्रग एडिक्टेड हैं, लड़कियों के पीछे भागने वाले हैं, सिगरेट पीने वाले हैं, मूवीज देखने वाले हैं, जिना करने वाले हैं, तो आपका बच्चा ना चाहते हुए भी जानी बन जाएगा, ड्रग एडिक्ट बन जाएगा, गुनहगार बन जाएगा। आपका बच्चा किसके साथ उठ रहा बैठ रहा है इस पर डिपेंड करता है कि नेक्स्ट आपके 40 साल 50 साल कैसे होने वाले हैं। जो भी 15 साल के बच्चे बच्चियां यहां पर हैं, आपके 3 फ्रेंड्स को मेरे पास ले आइए, आपके नेक्स्ट 50 इयर्स कैसे होने वाले हैं मेरे एक्सपीरियंस से मैं आपको बता सकता हूं। सिर्फ आपके 3 फ्रेंड्स मेरे पास ले आइए, मैं 1 घंटा उनसे इंटरेक्ट करूंगा, बात करूंगा, क्वेश्चंस पूछूंगा, उनका सोशल मीडिया अकाउंट चेक करूंगा, जाकर उनकी पास्ट को जानने की कोशिश करूंगा और बताऊंगा कि आपका फ्यूचर कैसे होने वाला है। आप किसके साथ उठते बैठते हो, इट इज द जॉब ऑफ पेरेंट्स टू इंक्वायर अबाउट दिस मैटर। आप स्कूल की फी दे रहे हो, मेहनत कर रहे हो, लेकिन आपका लड़का आपकी लड़की किसके साथ उठ रही है, किसके साथ रोजाना उनका उठना बैठना होता है। यू नीड टू कीप एन आई ऑन देम। आप लोग को नजर रखना है इन चीजों पर, तभी जाकर आपके बच्चे गुनाहों से बचेंगे। आपका बच्चा डॉक्टर बन गया लेकिन ड्रग एडिक्ट है, इंजीनियर बन गया लेकिन ड्रग एडिक्ट है, फोन मूवीज एडिक्शन आ गया है उसमें, तो डॉक्टर बनना बेकार, इंजीनियर बनना बेकार, आईएएस ऑफिसर बनना बेकार, जिंदगी जहन्नुम जैसी हो जाएगी। सर्टिफिकेट्स तो रहेंगे बिकॉज ऑफ इंटेलिजेंस एंड एवरीथिंग, लेकिन कैरेक्टर लूज रहने की वजह से पूरी जिंदगी आपकी तबाह हो जाएगी। इसीलिए तमाम चीजों से आप रिकवर कर सकते हो। लिसन टू माई वर्ड्स वेरी अटेंटिवली। तमाम एडिक्शन से आप बाहर आ सकते हो, ओवरकम कर सकते हो, एक्सेप्ट ड्रग एडिक्शन। इसमें जो इन्वॉल्व हो जाता है फिर कम बैक नहीं करेगा, पूरा उसकी करियर तबाह हो जाएगी, पूरा करियर उसका तबाह हो जाएगा। When I was working for a hospital as a pharmacist, I had a colleague. He used to smoke about 30 to 40 cigarettes every day. 30 से 40 सिगरेट पिया करता था, दुबला सा था, पतला सा था, रोजाना खांसते हुए जिंदगी गुजारता था। उसको लड़की पैदा हुई है और वो लंग्स उसके इन्फेक्टेड थे। गोया बाप ने सिगरेट पी पी कर अपने लंग्स को तबाह किया, और उसका असर किस पर पैदा हो रहा है, बच्चों पर हो रहा है। बच्चे कमजोर पैदा हो रहे हैं। तो बाप ने ऐसे बच्चों को जना है जो जिंदगी भर ट्रबल्स में ही रहेंगे बच्चे। क्यों हरकतें ऐसे किए हैं? तो आप सब नौजवानों से मैं देख रहा हूं, बिलखुसूस इंडिया के 20 स्टेट से मेरे वर्कशॉप में आते हैं, 1-1 महीना रहते हैं होटल में। उसमें 200 बच्चों में 10 बच्चे ड्रग एडिक्ट होते हैं, और वो 10 ड्रग एडिक्ट बच्चों में 5 बच्चे, यूटी खादर साहब, कर्नाटका से आते हैं। 5 बच्चे कर्नाटका से आते हैं, यानी इस स्टेट में बहुत बच्चे इन्वॉल्व है ड्रग्स में। ये सिर्फ पेरेंट्स की जिम्मेदारी नहीं है, ये जिम्मेदारी पुलिस की भी है, ये जिम्मेदारी पॉलिटिशियंस की भी है, और ये पॉलिटिशियंस और पुलिस से बड़ी जिम्मेदारी पेरेंट्स की और इस्लामिक स्कॉलर्स की है। ये लोग की भी जिम्मेदारी है कि ये लोग यंगस्टर्स और स्कूल गोइंग कॉलेज गोइंग बच्चों से मिलें, बात करें, मोटिवेट करें, तब जाकर ये माशरे में सुधार आ सकता है। सिर्फ पेरेंट्स के परेशान होने से माशरे में कभी सुधार नहीं आ सकता है। ये जो कंसर्न है, इट्स ए बिग चैलेंज टुडे, बहुत बड़ा चैलेंज है, और इस चैलेंज से अगर आपने बचना है तो सब ने एज ए टीम काम करना है, वरना जिंदगियां तबाह होने वाली है। ये फ्यूचर को हमने अगर बचाना है तो इसमें पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट है, पुलिस का इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए, पॉलिटिशियंस का इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए, स्कॉलर्स का इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए,
मैं पूरे दावे के साथ इस प्लेटफॉर्म के जरिए से मैं कहता हूं, अगर पेरेंट्स, पुलिस, पॉलिटिशियंस एंड स्कॉलर्स ये लोग महीना एक दफा मीटिंग करें और इस पर काम करें तो कोई लड़का इंडिया में ड्रग एडिक्ट नहीं होगा इंशाअल्लाह। ये एक ऐसी बीमारी है, पैसे भी खर्चा हो रहे हैं, सेहत भी तबाह हो रही है और पेरेंट्स भी परेशान हो रहे हैं। तो यहां जो मेरा लेक्चर सुनने आए हैं, जितने भी पेरेंट्स हैं, और HIF इंडिया को मैं रिक्वेस्ट करता हूं, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। इस चैलेंज को ओवरकम करने के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन नहीं कर सकता है। यू नीड टू सीक सपोर्ट, यू नीड टू सीक हेल्प फ्रॉम पुलिस, फ्रॉम पॉलिटिशियंस, फ्रॉम स्कॉलर्स, फ्रॉम सोशल एक्टिविस्ट एंड फ्रॉम वेरी गुड इंडिविजुअल्स इंशाअल्लाह। और हम वादा करते हैं, हम लोग मेहनत करेंगे इस पर और नौजवान बच्चों की जिंदगियों को हम बचाएंगे इंशाअल्लाह। और स्किल्स का ज़माना है, अगर आप स्किल्स सीखेंगे वहाँ पर तो फिर सैलरीज देखें आप कहाँ से कहाँ तक जाती है। टीचर की सैलरी क्या हो सकती है, एवरेज तौर पर बताएं मुझे कोई, एक टीचर की सैलरी कितनी हो सकती है? हैदराबाद में एक टीचर है, मैथ पढ़ाता है, उसका पैकेज है 1.5 करोड़ पर एनम, एक साल में 1.5 करोड़ कमाता है। पढ़ाता क्या है? मैथमेटिक्स। उसका A+B होल स्क्वायर, और जो टीचर 3,000 रुपए लेकर मैथमेटिक्स पढ़ा रहा है उसका A+B होल स्क्वायर में कोई फर्क है? कोई फर्क नहीं है। वो भी मैथ पढ़ा रहा है, ये भी मैथ पढ़ा रहा है। उसने भी B.Ed किया है, इसने भी B.Ed किया है। वो 1.5 करोड़ उसका पैकेज है और इस बेचारे की सैलरी 15,000 है, 25,000 है। क्यों? उसमें क्रिएटिविटी नहीं है, मेथडोलॉजी नहीं है, और एक कोर्स उसने ऐसा डिजाइन नहीं किया है, मेथड ऐसा डेवलप नहीं किया कि वो बच्चों को रिजल्ट ओरिएंटेड बना दें अपने कोर्स को। ऐसे कई टीचर्स हैं, टीचिंग लाइन में भी आप आ सकते हैं। जस्ट डॉक्टर्स, इंजीनियर्स बनने के लिए आप नहीं आए। इस माशरे को, इंडिया को सुपर पावर बनाना है तो इंडियंस को पावरफुल बनाना पड़ेगा। इंडियंस को पावरफुल कोई डॉक्टर, कोई इंजीनियर नहीं बनाता है। इंडियंस को पावरफुल अगर कोई बना सकते हैं तो वो टीचर्स ही बनाते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस दुनिया में भेजा गया और आपने कहा मुझे मुअल्लिम बनाकर भेजा गया, मुझे टीचर बनाकर भेजा गया। ऑफ कोर्स प्रॉफिट है, नबी है, लेकिन बता रहे हैं कि मुझे टीचर बनाकर भेजा गया। रेवोल्यूशन हमने ले आना है, सुपर पावर हमने बनाना है। तो पहले कंट्री को सुपर पावर बनाने से पहले हमने इंडिविजुअल्स को पावरफुल बनाना है। इंडिविजुअल्स को पावरफुल बनाने के लिए बहुत से टीचर्स की जरूरत है, बहुत से मेंटर्स की जरूरत है, बहुत से स्कॉलर्स की जरूरत है। तो आपने कदम आगे बढ़ाना है। अच्छे टीचर्स की जरूरत है, इसमें बहुत पैसा भी है, अब इसमें रेपुटेशन भी है, इसमें रिकॉग्निशन भी है, इसमें इंसेंटिव्स भी है। कब है? अगर सब्जेक्ट पर कमांड है आप में तो आप इंशाअल्लाह बुलंदियों पर जा सकते हैं। एक आखिरी मैसेज मैं आप सब लोग को देना चाहता हूं, ये बात सुनकर सब लोग जाएं। आपने अपने करियर को बनाना है। 10th क्लास में हो आप, 10th ग्रेड पढ़ रहे हो, आप बहुत सारे लोगों को सवाल करते हो, करियर काउंसलर्स को, कि मुझे फ्यूचर में क्या बनना चाहिए। तो ये 5 प्रिंसिपल्स मेरे पास में है, 4 और 5 गौर से सुने। आपने अपने करियर को अगर संवारना है ना, आपने कुछ प्रोफेशन को चुनना है, तो सबसे पहले देखें क्या आप में उस चीज को लेकर पैशन है कि नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने टीचर बना गवर्नमेंट जॉब छोड़कर। क्यों? क्योंकि टीचिंग में मुझे पैशन था, पैशन है और इंशाल्लाह पैशन रहेगा। जिस दिन मुझे पता चल जाए कि पढ़ाते वक्त में मैं बोर फील कर रहा हूं, इंशाल्लाह दैट वुड बी द फाइनल डे ऑफ माय टीचिंग करियर। बोर फील करते हुए मैं कभी नहीं पढ़ा सकता। मुझे पढ़ाने में बेहद मजा आना चाहिए। जैसा रोनाल्डो को फुटबॉल खेलते हुए मजा आता है, विराट कोहली को क्रिकेट खेलते हुए मजा आता है,
और कुछ बच्चों को टिकटॉक में वीडियोस बनाते हुए मजा आता है ना, वैसा आपने कोई भी प्रोफेशन चुनना है, आप वो क्या चुनोगे दैट इज योर चॉइस। मैं नहीं बताऊंगा आपको कि आपने ये चुनना है, ये चुनना है, ये चुनना है, लेकिन सबसे पहली चीज आपने क्या देखना है कि क्या आपका पैशन है उसमें। पैशन किसको कहते हैं? मजा आना है। 24 आवर्स भी अगर काम कर रहे हो तो मजा आना चाहिए। लेबर जो होता है ना 8 घंटे काम करता है, 4 घंटे के बाद से ही शुरू हो जाता है घड़ी देखना, और कितने घंटे, और कितने घंटे, और कितने घंटे। और जिसका पैशन होता है वो कभी घड़ी नहीं देखता है। मेरे पास कोई घड़ी नहीं है, ये टीचर के पास ना घड़ी ना छड़ी। मेरी जिंदगी में 3 लाख बच्चों को पढ़ाया, मेरा रब गवाह है, मैंने कभी इन हाथ से एक स्टूडेंट को भी नहीं मारा आज तक, एक भी स्टूडेंट को मैंने नहीं मारा। ना हाथ में छड़ी ना हाथ में घड़ी। पैशन लेकर क्लासरूम में दाखिल होता हूं। तो आप डॉक्टर बनना चाहते हैं, इंजीनियर बनना चाहते हैं, साइंटिस्ट बनना चाहते हैं, सिंगर बनना चाहते हैं, डांसर बनना चाहते हैं, क्रिकेटर बनना चाहते हैं, फुटबॉलर बनना चाहते हैं, रॉडी शीटर बनना चाहते हैं, किलर बनना चाहते हैं, पैशन है नहीं है पहले आपने देखना उसमें, मुझे मजा आ रहा है नहीं ये करने में, मजा आ रहा है, गो अहेड, आगे बढ़ो। दूसरी चीज, क्या इसमें पैसा है या नहीं है? क्योंकि 5,000 में जो घर चलता वो जमाना चला गया। 50,000 जो कमाते हैं मेरी नजर में आज वो बिलो एवरेज है, इतनी महंगाई हो गई है। अगर कोई 50,000 भी कमाता है ना, मेरी नजर में वो बिलो एवरेज घर है। इतने चैलेंजेस आए हुए हैं। पैसा होना बहुत जरूरी है, जो भी प्रोफेशन है। चॉइस इज योर्स, मैं नहीं बताऊंगा। पहला क्या होना चाहिए? आंसर मी लाउडली प्लीज। पैशन होना चाहिए। दूसरा, उस फील्ड में, उस करियर में, उस प्रोफेशन में क्या होना चाहिए? पैसा बहुत होना चाहिए, हलाल का हो और बेहतर है। तीसरी जो चीज है, फायदा सिर्फ आपका नहीं होना चाहिए, फायदा लार्ज स्केल पर अवाम का होना चाहिए। ये तीसरा प्रिंसिपल है। जो भी लाइफ में करोगे आप, चॉइस इज यूर्स। मैं नहीं कहूंगा कि ये चीज करिए, ये बनिए, ये बनिए, ये बनिए। क्या आपका पैशन है उसमें? क्या पैसा है उस फील्ड में? क्या वो करने से दूसरों को लार्ज स्केल में प्रॉफिट हो रहा है? गो अहेड, आगे बढ़िए। चौथा, लास्ट, वेरी इंपॉर्टेंट वन, पैशन भी है, पैसा भी है, अवाम का लार्ज स्केल पर फायदा भी है। मैं सिंगर बनना चाहता हूं, तीनों क्वेश्चंस पर आपका आंसर यस 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 है, गो अहेड देन। आप डांसर बनना चाहते हैं, पैशन है, गो अहेड। पैसा है, यस, गो अहेड। लोगों का फायदा हो रहा है, हां, बहुत से लोगों को जॉब दे रहे हो आप, गो अहेड। लेकिन चौथा सवाल करें, क्या इस काम से मेरा रब राजी है? मेरा अल्लाह राजी है? इफ यू गेट द नो आंसर देन डिलीट इट, छोड़ दें, लात मारे उन तमाम 3 चीजों को। आपका रब का राजी होना भी बहुत जरूरी है। पैशन भी होना है, पैसा भी होना है, लार्ज स्केल में इंसानों को फायदा भी होना है, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली उस काम से रब भी राजी होना है। पूरी दुनिया को फायदा पहुंच रहा है आपके काम से, और आपका रब राजी नहीं है उस काम से। जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना किया है उसको तो मारो लात, उसको छोड़ दो, उस दुनिया को। बिलियनियर भी है, टर्न ए ब्लाइंड आई टू दैट। दूर हो जाओ उस जहां से, दूर हो जाओ ऐसे चीजों से। नेक इंसान बनो, हलाल की कमाई आपने कमाना है, बिलियनियर बने आप, लेकिन देखें कि इस काम में आपका रब राजी है नहीं। रब को राजी करते हुए आपने आगे बढ़ना है इंशाअल्लाह, तो आप बहुत आगे चलोगे। यहाँ जितने भी स्टूडेंट्स आए हैं, पेरेंट्स आए हुए हैं, इतनी देर, चूंकि मेरे पास घड़ी नहीं, पता ही नहीं चलता है क्या बज रहे हैं टाइम, 7 बज रहे हैं, 8 बज रहे हैं, 9 बज रहे हैं, 9, 10, हाँ 9 बजे तक शायद यहाँ बताया गया है, और मैंने 10 मिनट आपके ज्यादा लिए हैं। जो भी पॉइंट्स मैंने रखे हैं उसको आप लोग लिख लें आज घर में जाकर। व्हाट इज योर टेक होम, यहां से आप क्या लेकर जा रहे हो,
ये तमाम चीज़ों को लेकर आप डिस्कस करें अपने मम्मा से, अपने डैडी से, अपने फ्रेंड से कि एक लेक्चर हमने HIF इंडिया के जानिब से हमने एक लेक्चर सुना है और लेक्चर में ये प्यारी बातें सर ने बताई थी कि विराट कोहली खेलते वक्त में उसके हाथ में फ़ोन नहीं होता है और हम पढ़ाई कर रहे हो हमारे हाथ में फ़ोन है, इसका मतलब अपना करियर कोलैप्स, अपना करियर पूरा तबाह हो गया है। तो अपने करियर को अगर आपने बनाना है, याद रखें मेहनत की ज़रूरत है, फोकस की ज़रूरत है। दिस इज़ नॉट माई लास्ट विजिट टू दिस ब्यूटिफुल सिटी। Inshallah, I keep coming and I keep delivering talks on different topics, inshallah. And I am truly thankful to all wonderful students and their parents and the very responsible citizens, residents of this beautiful city, and the great trustees, visionary trustees of HIF India, and one of my mentors, Ashraf Sahab, and the very dynamic personality of this beautiful city, who has, mashallah, created a history by becoming the Honorable Speaker of the Karnataka Assembly, Legislative Assembly, mashallah. सबको मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। और ज़ुबान में हड्डी नहीं होती, ये कहते हैं, जब टीचर या स्पीकर बोलता है तो बहुत से गलतियाँ होती हैं। मैं अल्लाह से तौबा करता हूँ और आप सब लोग को मेरी बातों से कोई तकलीफ हुई है कुछ बातों से तो आप मुझे माफ़ करें। मेरा इंटेंशन बच्चों को पेरेंट्स से जोड़ना होता है, बच्चों को रब से जोड़ना होता है, बच्चों को करियर से जोड़ना होता है और बच्चों को देश से जोड़ना होता है। ये चार चीज़ों से पर मैं काम करता हूँ कि आप पेरेंट्स के करीब हो जाएं, टीचर्स के करीब हो जाएं, अपने कैरेक्टर को डेवलप करें, फिर इंशाअल्लाह आप भी एक दिन इस हॉल में आओगे यूटी खादर साहब की तरह और सब लोग खड़े होकर स्टैंडिंग ओवेशन देंगे इंशाअल्लाह। एक दिन आएगा आपको यूटी खादर साहब गार्लैंड करेंगे और सल्यूट करेंगे कि दिस सन ऑफ दिस पर्टिकुलर सिटी हैज डन वंडर्स इंशाअल्लाह। आई प्रे टू अल्लाह सुब्हानहू व तआला फॉर योर सक्सेस। अल्लाह तमाम बच्चों को ड्रग से हिफाजत फरमाए और खूब इल्म से नवाजें। थैंक यू सो वेरी मच and have a wonderful life ahead. Jazakumullahu khair.